COVID 19 is a disease with the respiratory system, but here the problem lies with the disease itself. Doctors are finding it hard to detect the disease during the initial stages. They are discovering a new type of symptoms related to the disease, and they are terming it as silent hypoxia. So, before we dig into the topic, let us discuss what is hypoxia. So, hypoxia is a medical condition where a person experiences breathlessness due to various reasons, and pneumonia being one of them. And COVID 19 is also a pneumonic disease. So, due to the low amount of oxygen present into the body tissues, a person may suffer with hypoxia, and it can affect the part of the body or an entire body itself. And the most important symptoms of hypoxia are shortness of breath and increased heart rate. तो हम आगे समझते हैं कि एक इंसान के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए. So it says that 75 to 100 millimeter of mercury of oxygen should be present inside a human's body. So there is a device called pulse oximeter which measures the blood oxygen level inside a person. तो उस डिवाइस के हिसाब से, पल्स ऑक्सीमीटर के हिसाब से ये माना जाता है कि 95 to 100% के बीच में वो मीटर रहना चाहिए, वो वैल्यू रहनी चाहिए. और अगर 90% से नीचे इसकी वैल्यू जाती है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि उस इंसान के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो चुका है. किसी भी पर्सन में अगर 90% से नीचे अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल सामने आता है तो उस इंसान को लेथार्जी, कन्फ्यूजन और मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ सकता है. और अगर उस इंसान के अंदर 80% से नीचे अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल सामने आता है तो उस इंसान को वाइटल ऑर्गन डैमेज होने का डर हो सकता है. वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकता है 80% से नीचे अगर ऑक्सीजन का लेवल सामने दिखता है तो. So let us discuss what is silent hypoxia. As I already mentioned, due to hypoxia, a person experiences shortness of breath and heart problems. And if the blood oxygen level decreases below 80%, then there is a chance that that person might be experiencing vital organs failure. So what is the nature of silent hypoxia? Why doctors are calling it silent? It's only because of its insidious nature. It is hard to detect. बेसिकली डॉक्टर्स को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कोविड 19 के पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स को खोज निकालने में. मतलब कोविड 19 एक न्यूमोनिक डिजीज़ है और न्यूमोनिया के चलते हाइपोक्सिया का सामना करना आम बात है. पर डॉक्टर्स को पेशेंट्स के अंदर शुरुआती तौर पे हाइपोक्सिया के कोई भी लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं, सामने नहीं मिल रहे हैं. एक कोविड 19 पेशेंट के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल 50% से भी बिलो पाया जा रहा है, पर फिर भी वो इंसान, वो पेशेंट एकदम चुस्त और दुरुस्त नज़र आ रहा है. वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, वो ठीक ठाक बैठ रहा है, वो खड़ा हो पा रहा है. जबकि बिलो 80% के होते ही वाइटल ऑर्गन्स के फेल हो जाने का एक खतरा होता है. वहीं 50% के नीचे जाने के बावजूद एक पेशेंट, कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट, बड़े आराम से मोबाइल का इस्तेमाल कर पा रहा है, बड़े आराम से वो हर चीज़ का रिस्पॉन्ड कर पा रहा है. ये एक बहुत ही डरावना सिम्टम डॉक्टर्स के सामने एक चैलेंज बन के सामने आ रहा है. A very well-known doctor named Dr. Richard Levitan published his studies in an opinion piece in the New York Times, where he mentioned that doctors from different hospitals are reporting patients with below 70% of blood oxygen level or even below 50% of blood oxygen level, but then patients exhibiting no symptoms of hypoxia. They seem to be fine enough to responding to other doctors and operating their own mobile phones. It is the silent and insidious nature of the symptom which is why this is termed as silent hypoxia. Because बावजूद इसके कि उस पेशेंट में हाइपोक्सिया के कोई लक्षण नहीं हो, पर फिर भी उस इंसान के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल 50% से भी कम हो सकता है. और 50% के नीचे ब्लड ऑक्सीजन लेवल होने के पीछे की वजह एक ही है कि उसको कोविड 19 के लक्षण हैं. अब बात करते हैं कि साइलेंट हाइपोक्सिया एक्यूट हाइपोक्सिया से कितना डिफरेंट है. एक्यूट हाइपोक्सिया पेशेंट के ब्लड के अंदर लो ऑक्सीजन लेवल के होने की वजह से नहीं होता है, बजाय इसके उस पेशेंट के अंदर ज़्यादा मात्रा में CO2 का लेवल बढ़ जाने की वजह से होता है. जहाँ पे एक्यूट हाइपोक्सिया के दौरान एक पेशेंट अपने बॉडी के अंदर पनप रहे CO2 को एक्सपेल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस का शिकार होना पड़ता है. और एक समय ऐसा आता है कि उसका लंग्स जवाब दे देता है. डॉक्टर लेविटान के हिसाब से साइलेंट हाइपोक्सिया में ऐसा होता है कि कोविड 19 के वायरस
हमारे लंग्स के एयर सैक्स में अटैक करके उनको कोलैप्स करने में सक्षम हो जाता है, जिसके बाद हम ऑक्सीजन को बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, हमें ऑक्सीजन को इनहेल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड अ पेशेंट can expel CO2 because initially when the COVID-19 virus is attacking the lungs remain compliant and it can expel CO2, and this is why a person don't experience breathlessness because that person can easily expel CO2 while he is attacked by the COVID-19 virus. Just because COVID-19 के वायरस हमारे लंग्स के एयर सैक्स को अटैक करके हमारे लंग्स को असक्षम बना देता है, जिसके चलते एक पेशेंट को ऑक्सीजन इनहेल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और वही पेशेंट ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करने के चक्कर में बहुत ज़ोर से सांसें लेता है, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो लंग्स को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर देता है। एंड एज अ रिज़ल्ट कोविड-19 के वायरस से लड़ने के लिए हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे लंग्स के अंदर पस और फ्लूइड भर देता है, जिसकी वजह से एक पेशेंट अपने शरीर के अंदर बन रहे CO2 को भी एक्सपेल नहीं कर पाता है। तब जाके उस पेशेंट को ब्रेथलेसनेस का सामना करना पड़ता है, और तब तक उस पेशेंट के अंदर ब्लड का लेवल बहुत ही गिर चुका होता है, करीब 40 से 50% के पास चला जाता है। और 40 से 50% के पास ब्लड का ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाने का मतलब ये होता है कि उस पेशेंट को वाइटल ऑर्गन फेलियर का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते उसकी डेथ बहुत जल्दी हो जाएगी। और ये मान लिया जाता है कि उस इंसान को ब्रेथलेसनेस की वजह से ज़्यादा देर तक ब्रेथलेसनेस का सामना नहीं करना पड़ा। इसका मतलब ये होता है कि उसको हाइपोक्सिया नहीं था, बट साइलेंटली देयर इज़ अ सिम्टम ऑफ हाइपोक्सिया अंडरलाइंग द डिजीज़, which is why doctors are naming it as silent hypoxia or happy hypoxia as well, because a person seem to be normal, a person is not seem to be in distress mode due to shortness of breath, so that is why the symptom is also termed as happy hypoxia. जबकि एक इंसान हाइपोक्सिया का शिकार नहीं होता है तो उस इंसान के अंदर की साइकोलॉजी ये बताती है कि उसको कोविड-19 के कोई भी लक्षण नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाता है जब तक उसका ब्लड ऑक्सीजन लेवल बहुत कम नहीं हो जाता है, क्योंकि तब तक उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब तक एक पर्सन हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी होती है, उसके अंदर का ब्लड ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो चुका होता है कि उसको वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है। और वेंटिलेटर का सहारा लेने का मतलब ये होता है कि उस तरीके के और भी पेशेंट्स जो सामने आ रहे हैं और भी ऐसे डिले करके अगर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनको भी वेंटिलेटर का सहारा चाहिए होता है, जिसकी वजह से एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटिंग मशीन ज़्यादा मौजूद नहीं होती है एक टाइम पे। सो देयर कम्स अ शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटिंग मशीन्स विच इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। और एक पेशेंट को वेंटिलेशन में रखने के पीछे बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत होती है। उस पेशेंट के अंदर बहुत सारे ट्यूब्स डाले जाते हैं, उसके स्टमक के अंदर से, उसके ब्लैडर के अंदर से बहुत सारे ट्यूब्स डाले जाते हैं, इंटरवीनियस आर्टेरियल लाइंस, पम्प्स वगैरह बहुत कुछ चीज़ें उसके अंदर डाली जाती हैं, जिस वजह से ही उसको जीवित रखा जा सकता है। अब इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जबकि मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हाइपोक्सिया या फिर सांस लेने में दिक्कत के लक्षण पहले सामने नहीं आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को ये आशंका होती है कि उसके अंदर कोई भी कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं। पर मैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो पहले ही अपने अंदर साइलेंट हाइपोक्सिया का टेस्ट करवाए, जांच करवाए। एक पल्स ऑक्सीमीटर करके डिवाइस आती है जो मार्केट में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आसानी से आपको मिल जाएगी। आप उस पल्स ऑक्सीमीटर से अपने अंदर मौजूद ब्लड ऑक्सीजन लेवल को जांच लें, जिससे आपको पता चले कि अगर आपके अंदर 90% या उससे कम ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है तो आपको आगे के और टेस्ट करवाने चाहिए, आगे की जांच और करवानी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना एक थर्मोमीटर के इस्तेमाल करने जैसा ही आसान है, इसको इस्तेमाल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर किसी को भी ज़ुकाम, फटीग और फीवर महसूस होता है तो उनको पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटरिंग करानी चाहिए, क्योंकि वायरस टेस्टिंग और स्वैब टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 70% ही एक्यूरेट होते हैं, तो हम उनके भरोसे नहीं रह सकते वेदर वी हैव कोविड-19 और नॉट। सो इट इज़ बेटर टू गेट योर साइलेंट हाइपोक्सिया टेस्टेड अर्लियर।